Is my voice audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So there's a network issue is there. Okay, no issue. We start from the we again start from the start. Okay. So very good morning to all of you. And today you can in my laptop screen you can see in my laptop screen you can clearly see the syllabus of your first year basic electrical engineering laboratory. Okay. And today we will going to start our basic electrical engineering laboratory from the first experiment. In the screen, you can clearly see the first experiment is basic safety precaution and introduction and use of measuring instrument. Okay, the topic is basic safety precaution and introduction and use of measuring instrument. And I make a PPT. I can share you. Okay, and one by one, I will discuss every topic very. Okay, very deeply. Okay. सर हिंदी में बोल दीजिए सर. Okay, I am also describe all the thing in Hindi also. Do not worry. Okay, please listen to me carefully. I am describing all the thing English and Hindi also, both the language. Okay. So first, Thank you, sir. okay. So first thing is that first listen to me very carefully. If my voice and my laptop screen is not visible to you, then you can confirm. Okay. Okay. The first point is basic safety precaution. Basic safety precaution एक ऐसा चीज है. Please mute yourself. Do not. Please mute yourself. Do not unmute yourself. So that. Please mute yourself. Manish Kumar, mute yourself. Okay. The first topic is basic safety precaution. Basic safety precaution is the one of the most important part in our laboratory, electrical engineering laboratory. ये सबसे important चीज है basic safety precaution. And why this is the most important? Because if you are not concerned, if you are not concerned or serious, then it might be a chance of hazards, life threats in the labs, electrical engineering labs. अभी क्वेश्चन आता है क्योंकि ये टॉपिक इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इस टॉपिक को अगर हम इस चीज को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो एक लाइफ हैजार्ड हो सकता है. ठीक है, लाइफ रिस्क हो सकता है. ये इतना इंपॉर्टेंट है. क्यों होता है? अभी ये तो प्रॉब्लम हो गया. क्यों होता है? व्हाट इज द रूट कॉज? Because in the electrical engineering laboratory we are dealing with the single phase and three phase power supply. What you will going to know after some time, in the single phase तुम लोगों का घर में जो कनेक्शन होता है. सर आपका आवाज कट कट कर आ रहा है सर. Okay. अच्छा से समझ नहीं आ रहा है. तुम थोड़ा बाहर की Yes, तरफ. sir. कट जा रहा है बीच बीच में. Okay, some network issue is there. Please adjust. I'm repeating all the things. Don't worry. I know some network issue is there. Okay. I think network issue is sorted out. Okay. So basic safety precaution बहुत important है क्योंकि ये अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो एक लाइफ थ्रेट हो सकता है, लाइफ रिस्क हो सकता है. क्यों हो सकता है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैबोरेटरी में हम लोग सिंगल फेज और थ्री फेज जो सप्लाई है उसको लेके काम करते हैं. जितना भी मशीन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैबोरेटरी में, ठीक है, उसको एक पावर सप्लाई देना होता है. जितना भी इंस्ट्रूमेंट है, जितना भी एक्सपेरिमेंटल पैनल है, जितना भी मशीन है, जितना भी मोटर है, जितना भी जनरेटर है, इसको हम लोग एक सप्लाई देना पड़ता है. अगर हम सप्लाई देंगे तभी ये रन करेगा. ओके, तो ये जो सप्लाई हम लोग प्रोवाइड करते हैं, दिस सप्लाई इज बिटवीन 220 वोल्ट. इट मे बी इफ इट इज इन सिंगल फेज देन इट इज 220 वोल्ट. अगर सिंगल फेज हुआ तो ये 220 वोल्ट होगा. एंड इफ इट इज वी नीड द थ्री फेज सप्लाई देन इट इज 420 वोल्ट. सो if we this is the money. And also DC is there, 220 volt DC, 220 volt AC and 420 volt DC AC supply. 220 volt AC DC and 420 volt AC supply is there. So if we touch any naked pin or naked connection of 420 volt AC or 220 volt or 220 volt to 420 volt AC or 220 volt DC
420 volt AC or 220 volt DC or 220 volt AC, then it may be a chance, but it may be a life hazard, it may be a life risk. Like हम लोग का घर में हम लोग का हर एक का घर में इलेक्ट्रिकल सप्लाई आता है. तुम लोग बता सकते हो उस सप्लाई सिंगल फेज होता है या थ्री फेज होता है? कैन यू टेल मी इन आवर हाउस व्हाट सप्लाई इज देयर, सिंगल फेज एसी और थ्री फेज एसी? कैन एनीवन टेल मी? Single Single phase. Yes, exactly. In our house, please mute yourself. After the answer, after give the answer, please mute yourself. Okay, very good. हम लोग का घर में सिंगल फेज एसी आता है. ओके, सो सिंगल फेज एसी में ऑल्सो सिंगल फेज एसी 220 वोल्ट इज वेरी डेंजरस. बहुत लोगों का जान इसमें जाता है, बहुत लोगों का. बीच बीच में तुम लोग न्यूज़पेपर में सुनते हो कि after the Diwali, some people are short circuited and they are they killed by the high voltages. काम करते हुए या किसी का घर में बहुत लोग क्या करते हैं, देखो ये चीज जानना बहुत जरूरी है. दिस थिंग हम लोग को बहुत जानना जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रिकल से बहुत लोगों का जान जाता है. दूसरा, किसी चीज से उतना भी लाइफ हैजर्ड नहीं होता, जान नहीं जाता जितना इलेक्ट्रिकल को कैजुअली लेने से जान जाता है. बहुत लोग क्या करता है, बहुत लोग हम लोग कपड़े मिलते हैं, कपड़े सुखाते हैं, हम लोग घर में कपड़े सुखाते हैं, तो कपड़े हम लोग जब सुखाते हैं एक जीआई का वायर यूज करते हैं, राइट? एक एल्यूमिनियम का वायर यूज करते हैं, लोहे का वायर यूज करते हैं घर में. उसको दो जगह से टांग दिए और उसके ऊपर हम लोग कपड़े मेलने लगे और वो उसका इंसुलेशन नहीं रहता, नेकेड होता है, एल्यूमिनियम का होता है या जीआई का होता है. तो क्या होता है, जब मान लो हम लोग दिवाली में, बहुत जगह ये इंसिडेंट हुआ है, दिवाली में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लाइटनिंग से हम लोग के घर को डेकोरेट करते हैं. अभी क्या होता है, मान लो कोई बारिश हुआ, कोई तूफान आया, तो कहीं पर एक अगर वायर इधर से उधर हो गया या उसका इंसुलेशन हट गया और वो जाके जहां पर हम लोग कपड़े मेलते हैं उधर पर जीआई तार के साथ कांटेक्ट हो गया, उसके बाद क्या ये इंसिडेंट हुआ है बहुत जगह, तो उसके बाद कांटेक्ट हो गया, अभी उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, जो जीआई तार है उसका इंसुलेशन नहीं है. अपने घर का लोग क्या करते हैं, उसके जाके कपड़ा मेलते हैं, कपड़ा सुखाते हैं, कपड़ा भी भीगा रहता है, भीगा कपड़ा सुखाने के लिए देते हैं. जब उसको भीगा कपड़े को उधर देते तो शॉक लग जाता है, शॉक लग जाता है. ऐसा इंसिडेंट हुआ है कुछ मैंने एक या 1.5 साल पहले, ऐसा एक घर में हुआ है वेस्ट बंगाल में, न्यूज़पेपर में भी आया था कि कपड़े सुखाने के लिए दिया था और उसको वो शॉर्ट हो गया था और इंसुलेशन नहीं था. तो लड़का क्या किया, उस घर में पिताजी, मदर, फादर एंड वन सन किया. तो लड़का क्या किया, कपड़ा सुखाने के लिए दे दिया. अभी जब कपड़ा मेला उसको शॉक लग गया, अभी शॉक लगा है वो कुछ बोल नहीं पा रहा, ठीक है, मगर उसका पिताजी उसको देख लिया, पिताजी उसको बचाने के लिए आया, पिताजी को भी शॉक लग गया. कुछ मिनट के अंदर एक फैमिली का 2 मेंबर का डेथ हो गया, कुछ मिनट के अंदर. ये इतना डेंजरस है, इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने कुछ मिनट के अंदर एक घर में 3 मेंबर था, फैमिली मेंबर, उसके बीच से 2 मेंबर मर गया. और ये ऐसा चीज है, मैंने अगर अच्छी तरह मैंने कैजुअली अगर ये शॉक लग गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो मैंने तुम अगर किसी पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल जाओगे, उसका इलाज करवाओगे, तो कुछ टाइम मिलता है. कुछ भी हो गया, कैंसर पे भी टाइम मिलता है, कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, मगर इस पे टाइम नहीं देता. तुरंत मैंने हार्ट अटैक हो जाता है, तुरंत वो लोग मर जाता है. और भी जगह क्या होता है, जैसे जैसे पंडाल होता है, पूजा होता है, हम लोग को बहुत जगह पूजा होता है, पंडाल होता है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ. जो पूजा होता है, पंडाल होता है, क्या होता है उसमें तुम देखना, उसके लिए पर्टिकुलर देयर इज नो पावर सप्लाई, डेडिकेटेड पावर सप्लाई नहीं है. जो पूजा होता है, कोई भी पूजा होता है, पंडाल होता है, देयर इज नो डेडिकेटेड पावर सप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर पैंडल और पंडाल्स. तो वो लोग क्या करता है, जो लोग पैंडल्स का इलेक्ट्रिकल का काम करता है, वो हम लोग का रास्ते के ऊपर से 3 वायर गया है ना, हेलो, 3 वायर तुम लोग देखना घर के ऊपर से गया है, तो उसमें से हम लोग का सप्लाई आता है, घर का सप्लाई आता है. तो पेंडल जो करता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो करता है पेंडल का, वो क्या करता है, उधर से सप्लाई लेके
काम चला लेता है, उधर से सप्लाई लेके काम चला लेता है, उसके साथ जनरेटर लगा रहता है, अगर करंट चला गया तो ऐसा तरीके से सप्लाई कर देता है, अगर डेडिकेट पावर सप्लाई नहीं रहता। बहुत दिन पहले क्या हुआ था हम लोग के उधर पर बंगाल में, ये मेरे घर के बगल में, तो ऐसा पंडाल हुआ था, दुर्गा पूजा का माहौल चल रहा था। एक लड़का था जो क्लास 12 में पढ़ रहा था। अभी वो लोग क्या करते हैं, माइक्रोफोन था उधर पर पंडाल में, कुछ माइक्रोफोन रहता है सबको बुलाने के लिए, ये गाना खाना बजाने के लिए, वो माइक्रोफोन लेके खेल रहा था। अभी माइक्रोफोन मेटल का है, बहुत माइक्रोफोन मेटल का होता है। अभी कहीं से वो जो पावर सप्लाई है 3 फेज, वो वो मैंने कहीं पर वो माइक्रोफोन शॉर्ट हो गया। और दुर्गा पूजा का दिन वो लड़का जब उस माइक्रोफोन को पकड़ा, वो खेल रहा था, शॉर्ट हो गया, उसको पता नहीं, तो देख आंखों से देख नहीं सकते हम लोग। तो पकड़ा और कुछ मिनट मिनट के अंदर वो मर गया लड़का, क्लास 12 का लड़का। ये इतना डेंजरस है। सिर्फ यही नहीं, बहुत लोग जैसे हम लोग का हर एक स्टेट का पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ये जो 3 फेज तुम लोग वायर देख रहे हो, 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 3 वायर सप्लाई 420 वोल्ट, ये जो घर के ऊपर से जा रहा है, ये सब, ये जो घर के ऊपर से जा रहा है, इसमें भी बीच बीच में फॉल्ट होता है, इसको भी मेंटेनेंस करना पड़ता है। बारिश आ गया, आंधी आ गया, तूफान आ गया, ये टूट गया बीच से, इसको भी बहुत लोग एक गाड़ी से आके इलेक्ट्रिक सप्लाई या कॉन्ट्रैक्टर आके मेंटेनेंस करता है। तुम लोग देखना, हेलमेट पहन के कुछ वर्कर लोग इसको पोल के ऊपर उठ के मेंटेनेंस करता है। इसमें भी बहुत लोगों का जान जाता है कैजुअली। मान लो कहीं पर शॉर्ट हो गया, सर्किट डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, सर्किट ऑफ नहीं हुआ, बहुत लोगों का जान जाता है। तो सेम चीज हैपन इन द, माने सेम चीज कैन बी हैपन इन द लैब। we all must very serious and in the labs when we making the connection, जब हम लोग कोई भी सर्किट का कनेक्शन करेंगे तो हम लोग को बहुत सीरियस रहना होगा, बहुत कॉन्शियस रहना होगा। आवर माइंड शुड बी वेरी कॉन्शियस सो दैट वी कैन मिनिमाइज द द एनी हैजर्ड। ओके, हम लोग को माइंड को एकदम कॉन्सेंट्रेट रखना होगा, कोई हैजर्ड नहीं। ओके, सो नाउ आई विल टेल पॉइंट बाय पॉइंट व्हाट थिंग वी विल मेंटेन इन द लैब फॉर द सेफ्टी पर्पसेस। हम लोग एक बाय एक लाइन को डिस्कस करेंगे, जैसे हम लोग लैब में हम लोग सेफ्टी चीज को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं, व्हाट इज द पॉइंट्स, एक बाय एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ओके, सो first I will tell you in the English, after that I will tell you in the Hindi. Okay, so first thing is so in the laboratory, first shoe must be owned. You guys all shoe must be owned. जूता पहन के सबको आना चाहिए, ठीक है। सबको जूता, सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए सबको जूता पहन के आना चाहिए, ये फर्स्ट थिंग्स है। ओके, second thing is if you wear any jewelry, or long chain, then do not wear any jewelry or long chains, so that any jewelry is also the conducting material, right? All the jewelries are made of the metal, and that is the conducting material. Okay, सो अगर हम लोग को मान ले मैं एक बड़ा चेन गले में पहन के आया, या मेरे हाथ में एक ब्रेसलेट है, अगर मान लो कोई नेकेड वायर है या नेकेड कनेक्शन है या नेकेड टर्मिनल से हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं, मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, मेरे हाथ में ब्रेसलेट है जो हाथ से थोड़ा लंबा है, ठीक है, वो अगर कोई नेकेड कनेक्शन के साथ, नेकेड टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो गया, तो क्या होगा, एक शॉर्ट सर्किट लगने का पॉसिबिलिटीज रहता है, एक हैजर्ड होने का पॉसिबिलिटीज रहता है। तो इसको हम लोग बीवायर होना चाहिए, इसको हम लोग ठीक करना चाहिए, इसको हम लोग इस कैजुअलिटी से नहीं लेंगे। हम लोग लॉन्ग चेन्स या ब्रेसलेट्स ये हम लोग नहीं पहनेंगे, क्योंकि ऑल द ब्रेसलेट्स एंड ऑल द jewelry is also the conducting material, and if this material is contact with the open terminal or a naked wire, then there can be a chance of life hazards, and we can take it casually. Okay, the next thing is that okay, so हम लोग लैब में
जब इंडस्ट्री में काम होता है, हाई वोल्टेज में काम होता है, तो देयर सम ग्लाव्स इज देयर, देयर सम ग्लाव्स इज देयर। वर्कर क्या करते हैं, ग्लास पहन लेता है जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना होता है। सो देयर सम ग्लाव्स इज देयर, which gloves is put by the worker who is dealing with the high voltage in the industry. Okay, now go to the next slide. So in the next point, ओके, सो हम लोग जब लैब में कोई कनेक्शन करेंगे, कोई टर्मिनल को ज्वाइन करेंगे, मैंने बोला एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में तुम लोग एक सर्किट को डिजाइन करो। कुछ भी सर्किट अगर तुम लोग डिजाइन करने के लिए जाओगे, if you going to design a particular circuit in a given experimental panel, then you must first thing what you must do, फर्स्ट तुम्हें देखना है पावर सप्लाई बंद है कि नहीं है, पावर सप्लाई बंद है कि नहीं है। पावर सप्लाई कहां पर रहता है, पावर सप्लाई एक्सपेरिमेंटल जो पैनल रहता है उसके अंदर रह सकता है, उसके अंदर होता है। पीछे जो वॉल होता है, बैक वॉल, जहां से पावर सप्लाई आता है थ्रू द पैनल, also you can check in the back wall if there should be a changer, there should be MCB, which if they are turned on, then you must turn off this thing also. Means that you just disconnect all the thing, you just turn off all the supply before going to make before going to design any circuit. Before going to design any circuit, you guys must turn off all the power supply. It may be in the experimental panel, it may be in the trainer kit, it may be in the back side of the experimental panel, in the lab wall. All the power supply must be off. Okay. The next point is that हम लोग जब कहीं पर डिजाइन करेंगे, काम करेंगे, तो वर्किंग टेबल और वर्किंग प्लेस शुड बी वेरी क्लीन, और जितना भी हम लोग का माने अननेसेसरी वायर, अननेसेसरी थिंग्स है, उसको हम लोग साइड में रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक फोकस माइंड से हम लोग सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, always check the, you can see the point number 8, that always check the power switch is off, okay, before plugging into the output, and also turn instrument on equipment before unplugging from the output. Okay, so वही चीज बोला गया है ऑफ करने के लिए। ठीक है, point number 9 is very important. Point number 9 you can clearly see in the screen. Point number 9 is very important, and it is not only you can maintain in the electrical engineering lab, also you can maintain in your home. In your home also you dealing with many instruments, like हम लोग का घर में भी बहुत इंस्ट्रूमेंट होता है, लाइक टीवी होता है, फ्रिज होता है, फैंस होता है, many electrical instrument gadgets are in our home. तो हम लोग जब ये पॉइंट नंबर 9 को अच्छे से देखो, इस पॉइंट नंबर 9 में बोला गया है व्हेन अनप्लग ए पावर कॉर्ड और पुल द प्लग नॉट द केबल। ये चीज हम लोग सभी गलती करते हैं। जब हम लोग मान लो कहीं पर फ्रिज लगा हुआ है, फ्रिज का सप्लाई गया है, तो फ्रिज एक प्लग से कनेक्टेड है, एक 3 पिन सॉकेट से, 3 पिन प्लग रहता है, उसको हम लोग 3 पिन सॉकेट रहता है वॉल में, उसको हम लोग एक प्लग से, और प्लग जो रहता है फ्रिज के साथ उसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई बोले फ्रिज का वो जो कॉर्ड निकालो बाहर, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको हम लोग प्लग को नहीं खींचते, हम लोग केबल को खींचते हैं। ये हम लोग सब करते हैं। मान लो कंप्यूटर का पावर सप्लाई एक हम लोग का प्लग से आ रहा है, सॉकेट से आ रहा है, तो हम लोग अगर कोई तुम्हें बोले उसका तार को निकालो, हम लोग क्या करते हैं, उसको तार को पकड़ के खींचते हैं। रेदर हमें खींचना चाहिए क्या, हमें पुल क्या करना चाहिए, अनप्लगिंग हो, अनप्लग द पावर कॉर्ड, देन पुल द प्लग। ऊपर जो 3 पिन प्लग होता है वो 5 एम्पियर का हो सकता है, 15 एम्पियर का हो सकता है, उसको हमें पुल करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो जो प्लग वायर होता है उसको खींचते हैं। अगर उसे हम लोग खींचेंगे, इट मे बी ए चांस दैट केबल इज गोइंग टू डैमेज, केबल डैमेज हो सकता है।
ठीक है, उस केबल और जो 3 पिन प्लग रहता है उसके बीच में भी एक एक फ्लेक्सिबल केबल रहता है ऊपर ऊपर की तरफ, वो भी वो भी खराब हो सकता है, वायर वायर फट सकता है। There will be also a chance when we pull the cable, not the plug, then there may be a chance अगर उसका इंसुलेटर हट गया, तार अगर बहुत थिन इंसुलेटर से प्रोटेक्टेड है, then अगर थिन इंसुलेटर इज गोइंग इज हट गया तो there will be a chance that we may be get shocked. Okay. Okay. The next 10 number point is also very important. When disassembling a circuit, first remove the source of power. जब हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट को असेंबल करता है या डिसेंबल करता है, तब हम लोग को पहले क्या करना चाहिए? फर्स्ट वी हैव टू डू फर्स्ट व्हेन वी असेंबल और डीअसेंबल इन एनी थिंग्स, any machines, then we first cut the of the power source of the power supply. This is the very important thing of the power supply. कोई भी काम करने से पहले घर में मान लो कोई तुम्हें टीवी नहीं चल रहा है, ठीक है, तुम किसी चीज को मूव करना चाहते हो, डेकोरेट करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो फर्स्ट पावर सप्लाई को बंद करना चाहते हो। अगर ये बेसिक चीज थिंग हम लोग अगर मेंटेन करेंगे तो बहुत, मैंने जो पहले बताया, बहुत लाइफ रिस्क माने ये नहीं होगा, ये जो कैजुअलिटी होता है ये नहीं होता है, ठीक है। The next, now we are going to next slide. Okay, the next point is very important. That is, you can see in the 13 number point, keep fluid, chemical, and beat away from the instrument and the circuit. That means अगर मान लो फ्लूइड, मान लो कोई इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन तुम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तुम लोग प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो, मगर एक्सीडेंटली पानी पीते हुए पानी गिर गया है, तो हो सकता है शॉक लग गया, शॉक लग जा सकता है। कोई केमिकल बगल में है, तुम लोग कनेक्शन करो, केमिकल गिर गया सर्किट के ऊपर, तो हैजर्ड हो सकता है। तो हम लोग जब काम करेंगे तो कीप फ्लूइड केमिकल अवे फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सर्किट। जितना भी लिक्विड वाटर है या कोई केमिकल है, इसको हम लोग दूर रखें, ठीक है। The 14 number point you can clearly see, if there will be any damage, if there will be any damage in the circuit, in the given experimental panel or the thinner teeth, and you can see that this thing is damaged, this thing is not working properly, if there going be a flash, हो सकता है ना कभी हम लोग कनेक्शन करते एक फ्लैश हो जाए, इलेक्ट्रिकल फ्लैश हो जाए, कोई फ्लैश हो रहा है या कोई चीज काम नहीं कर रहा, कुछ प्रॉब्लम है, हम फील देख लिए, तो रिपोर्ट दैट डैमेज टू द इंस्ट्रक्टर, report that damage to the your lab instructor or lab teacher is always there in the lab. You just tell them that sir, sir, there may be a fault is there or damage is there, please check this thing. Okay. Okay, and next thing is that जब हम लोग कोई सर्किट को कनेक्शन करेंगे, तो हम लोग कोई सर्किट को कनेक्शन करेंगे, हो सकता है वो एक्सपेरिमेंटल ट्रेनर किट में हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल पैनल में हो सकता है, या लूज इंस्ट्रूमेंट से हम लोग कोई सर्किट को डिजाइन कर रहे हैं, तब जब हम लोग सर्किट डिजाइन करेंगे, कोई इंस्ट्रक्टर तुम्हें लैब में बोल दिए सर्किट को डिजाइन करना, तो तुम पहले पावर सप्लाई को बंद करोगे, सर्किट को डिजाइन करोगे, सर्किट डिजाइन करने के बाद when you are competing, when you are complete the design of the particular circuit, then after that you can not turn on the power supply. Okay, जब तुम लोग सर्किट कंप्लीट कर लोगे उसके बाद तुम लोग पावर सप्लाई को ऑन नहीं करोगे, फर्स्ट यू have to call the instructor that sir, we complete the circuit, please check the circuit. After every designing the circuit, you must check the circuit by the instructor in the lab. After that,
When the instructor says okay, the circuit is okay, circuit is right, circuit connection is right, then only you can give the power supply to the circuit. Why I am telling you that thing? Because if you, अगर तुम लोग मान लो कोई सर्किट डिजाइन करने के टाइम में कोई टर्मिनल गलत तरीके से ऐड कर दिए, कोई टर्मिनल गलत तरीके से लगा दिया और उसको पावर सप्लाई दे दिया, तो क्या हो सकता है? तो हो सकता है देयर विल बी ए डैमेज, एक मोटर जल सकता है, मोटर के अंदर वाइंडिंग रहता है मोटर जनरेटर के अंदर, तो मोटर जनरेटर बहुत कॉस्टली आता है, वो जल सकता है, शॉक लग सकता है, एक हैजर्ड हो सकता है। इसीलिए जब तुम सर्किट डिजाइन करोगे तो पहले तुम लोग सर्किट को कनेक्शन करोगे एज पर सर्किट डायग्राम, then call the instructor and tell the instructor that said we completed the circuit, please check the circuit is right or not. If the instructor say that yes, circuit is right, circuit connection is right, then only you can give the power supply and rotate the machine. Otherwise you stop there. Okay. And always should be, when you are designing a particular circuit, when you are working with a particular experimental panel, then you must be very your mind should be very focused. There should be no casualties there, because if there is some casualties there, then life threat is there. Okay. Okay. So ये चीज को, बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशन को हम लोग को याद रखना चाहिए। अच्छा, अभी आता है इफ अगर कोई इंसान को शॉक लग गया तो क्या होगा? मान लो कोई दोस्त या कहीं पर घर में भी किसी को शॉक लग गया, उसके बाद तुम लोग क्या करोगे? ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। शॉक लगने के बाद क्या होता है? हो सकता है शॉक लग गया, तुम लोग उसको पावर सप्लाई ऑफ करके उसको ठीक माने डिस्कनेक्ट माने लाइन से हटा भी दिए, उसके बाद क्या करना? जो इंसान को शॉक लगता है उसका गला सूख जाता है, उसका गला सूख जाता है, कुछ बेसिक सिम्टम इज देयर, तो वो क्या करता है? वो पानी पीना चाहता है, तो तुम्हें बोलेगा थोड़ा पानी दीजिए, तो उसको ठंडा पानी नहीं देना। जो इंसान को शॉक लगा है उसको कोई ठंडा चीज उसको नहीं देना, क्योंकि देयर माइट बी ए चांस आफ्टर द शॉक द पेशेंट हैव हार्ट अटैक हो सकता है, ये बहुत डेंजरस है। तो पहले उसको, जिसको शॉक लगा है उसको कोई भी ठंडा चीज नहीं देना है, उसको हो सकता है गर्म दूध दे सकते हो, अगर गर्म दूध नहीं है गर्म पानी दे सकते हो थोड़ा, उसके बाद उसको लेके नियर हॉस्पिटल में जाना है, डॉक्टर के पास लेके जाना है। ओके, क्यों डॉक्टर के पास लेके जाना है? क्योंकि एक शॉक लगने के बाद क्या होता है? अनइजी फील होता है, हार्ट रेट, देयर विल बी अ चांस दैट हार्ट रेट गेट इंक्रीज मच मोर। तो जब तुम डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर के पास दवाई रहता है जो वो मैंने ऐसा बहुत तरीके का दवाई रहता है जो नर्व को स्टेबल कर देता है। तो क्या होता है, हम लोग का नर्व या हार्ट का रेट ये बढ़ जाता है, तो डॉक्टर के पास ऐसे दवाई रहता है जो उसको माने बॉडी का जो नर्व है उसको नॉर्मल कर देता है। तो फर्स्ट उसको लेके हॉस्पिटल में जाना है, या जो हॉस्पिटल है, हेल्थ सेंटर है, या डॉक्टर के पास लेके जाना है। उसको गर्म ठंडा चीज नहीं पिलाना है, ठीक है? हो सकता है वो बोले कि मैं ठीक हूँ, मगर ये वो बता नहीं सकते, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना ही है। डॉक्टर उसको हार्ट रेट देख के, स्टेथोस्कोप देख के चेक करके उसको बता सकता है वो कौन सा कंडीशन में है, और उसको दवाई दे सकता है एज पर हिज और हर रिक्वायरमेंट। ओके, सो हम लोग को कोई कैजुअलिटी नहीं करनी, ठीक है? घर में जो पुराना इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन है उसको, बहुत कनेक्शन क्या होता है, अगर पहले अभी तो काउंसिल होता है, अभी तो काउंसिल वायरिंग होता है, प्लास्टर का अंदर से वायरिंग होता है। पिछले जमाने में क्या होता था, ऊपर से वायरिंग होता था, जो एक वुडन स्ट्रिप के ऊपर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन किया जाता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल का वायर देके उसको एल्यूमिनियम का एक छोटा सा पिन रहता है, उससे अटैक किया जाता है। वो अगर मान लो पुराना वायरिंग किसी के घर में है तो उसको एक इलेक्ट्रिशियन देके चेक कराना चाहिए, कहीं पर लीक हो रहा है कि नहीं, कहीं पर इंसुलेटर खराब हो गया कि नहीं, ठीक है? और कोई भी चीज को पहले हाथ नहीं लगाना है, पहले उसको करंट अगर किसी चीज से फ्लो हो रहा है तो ये हम लोग आंख से नहीं देख पहचान सकते, तो टेस्टर से उसको चेक करना चाहिए, ठीक है? प्रॉपर इलेक्ट्रिशियन को बुला के उसको मेंटेन करना चाहिए। खुद
मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ इसके मतलब मैं जाके कुछ टीवी फ्रिज मेंटेनेंस कर दूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो लाइफ हैजर्ड रहेगा, लाइफ रिस्क रहेगा। ओके, सो दैट इज द सेफ्टी प्रिकॉशन पार्ट। बहुत ये मैं 10 लाइन में भी कंप्लीट कर सकता था, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इतना देर तक तुम लोग को बोला। ठीक है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या होने के बाद क्या करना चाहिए, ये मैं 2-3 लाइन में बोल सकता था, मगर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कस दिस थिंग वेरी इलैबोरेटली, वेरी डीपली। Next point is in the syllabus. Next point is various instrument. Okay, various type of instrument, measuring instrument. अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशन के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का सेकंड पार्ट है, वी आर गोइंग टू नो अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज देयर। Okay, so one by one I will show the picture of the every instrument, and after that we will discuss about the working principle of this particular experiment. Okay, is that clear? Hello, is that clear? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay. Zoom time limit is ending. Mute yourself. Zoom time limit is ending. Zoom time limit is ending. If the meeting is turned off or end automatically, then please join again. Okay, if the time limit is ending, if the meeting is off, then please join again. Okay, we discuss very interesting topic now. So if the meeting is off, please join again using the same link. Okay. Okay, sir.